चलो देखते हैं नाउ वी आर टॉकिंग हियर अबाउट न्यूरल। अभी दो चैप्टर है आप लोगों को ह्यूमन फिजियोलॉजी में। वन इज कॉल्ड एज द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड द अदर वन इज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नाउ दीज टू आर बेसिकली द पार्ट ऑफ अ मैकेनिज्म नोन एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? ये होता क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? Anyone? The motor movements of our body. मोटर मूवमेंट्स मतलब क्या? The movement of muscles, hands and legs, and Movement. coordination with the sense. Okay, movement of muscles, hand, legs, and coordination with the senses. Very good. Any other answer? Hello. Yes. Coordination is the process through which two or more organs They do what? they interact and complete the functions. Okay. The organ interaction between the organ, the movement of the muscles and actions of the muscles. Anything else? Control and coordination. The way in which the brain helps in facilitating the movements of like body parts. Okay, the way in which the brain helps in facilitating the movements of the body parts. See, basically, when we say control and coordination, na, it is not only related to the movement or coordination between the organs or the parts, but it is one of the most important process which helps us to maintain the body's equilibrium. Correct? जो हमारा बॉडी के अंदर स्टेडी स्टेट होता है, जो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म नोन एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट? जो भी एक्शंस हमारे होते हैं वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। जो भी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, वेयर ऑल, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन, रेस्पिरेशन दैट इज ब्रीदिंग, या फिर एक्सक्रीशन, या फिर ट्रांसपोर्टेशन दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, राइट? एंड दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन, मतलब वो एक दूसरे के साथ नहीं, अपने आप में भी उनके खुद के ऑर्गन्स दे आर इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। जैसे इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था आपको दैट in case of digestive system, the bile juice and the pancreatic juice will be released only when the food enters in the small intestine. Correct? I told you that in case of digestive system, the hydrochloric acid will be released even at the sight and smell of the food. मतलब बेसिकली ये कहां से हो रहा है? दिस इज ऑल टेकिंग प्लेस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम और न्यूरल कोऑर्डिनेशन। बट न्यूरल कोऑर्डिनेशन मतलब नर्वस सिस्टम कैन नॉट वर्क अलोन, वो अकेला काम नहीं कर सकता है। इट रिक्वायर्स द सपोर्ट और हेल्प ऑफ अनदर इंपॉर्टेंट सिस्टम दैट इज नोन एज हार्मोनल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, which is known as the chemical coordination. तो इसके लिए control and coordination is going to be very important, and that is why it is divided into two different parts. Yes, Pragya, you want to say something? Sir, when will you start anatomy of flowering plant chapter? Next lecture में 4:30. Okay, sir. Okay, so this is how, this is track 2. By the way, Pragya, ये आपका अलग चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ औरंगाबाद के बच्चे हैं, बाकी का जो दूसरा मेरा लेक्चर होता है उसमें सारे बच्चे होते हैं। Okay, sir. Yeah, so basically इसमें दो systems आएंगे, one is known as the nervous system that is called as the nervous coordination, and another one is known as the endocrine system which is known as the hormonal coordination. Okay, तो ऐसे दो अलग अलग systems हम लोगों को पढ़ने हैं, but how they are connected to each other, that also we need to understand, right? Just a minute, मैं थोड़ा ये चार्जर लगा देता हूँ।
तो थोड़ा नर्वस कोऑर्डिनेशन की तरफ बढ़ते हैं एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द नर्वस सिस्टम हियर फर्स्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे जो दिया है वो मैं सिखा रहा हूँ, मेरा सिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। नेक्स्ट लेक्चर से दैट विल स्टार्ट। ठीक है ना। In case of unicellular organisms, as we have seen, like for example animals like amoeba, we see that because it's a single celled animal, so it's going to perform all the functions. So let it be digestion, let it be excretion, let it be respiration, let it be reproduction, everything will be done by the same cell. But when it comes to multicellular organism, multicellularity will make sure that there is division of labor. मतलब ये सारे फंक्शंस विल बी डिवाइडेड विद द हेल्प ऑफ द सिस्टम। तो हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वी आर गोइंग टू हैव अ डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स। तो प्रॉपर सिस्टम्स डेवलप होना चालू हो जाएंगे एंड दे विल हेल्प इन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, सो बेसिकली देयर इज रिक्वायरमेंट एंड एज ऑल दिस सिस्टम्स दे आर ऑल वर्किंग राइट, हमारे बॉडी के अंदर सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, बट देन ऑफ कोर्स दिस सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड, so they will require a proper coordination amongst themselves, and this coordination is done with the help of one of the important system that is known as the nervous system. नहीं नहीं, ये अभी मत लिखो अमन, ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर से जो मैं बताऊंगा आपको वो लिखना है आपको। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, एक 10 मिनट के लिए लेते हैं, देन वी विल स्टॉप। ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टार्ट चैप्टर लाइक दिस, लेकिन टाइम है अपने पास करके मैंने चालू किया है राइट। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं। जैसे इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, उसमें न्यूट्रिएंट्स आते हैं, देन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में वी टेक इन ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन एंड this one, that is nutrients, they are required for what? They are required for the synthesis of energy. So one common function for which two different molecules are required, which are synthesized by two different systems. मतलब ये दोनों सिस्टम को कोऑर्डिनेशन में काम करना पड़ेगा, then only energy will be produced, and that is why it requires a proper coordination. So this control and coordination is done with the help of one of the important system that's called as nervous system. So we call this as nervous coordination, and then along with that we also have another system that is known as endocrine system, which has an important coordination known as the hormonal coordination. तो ऐसे दो अलग अलग कोऑर्डिनेशन आएंगे, वन इज द नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द अदर वन इज द हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। लेकिन ये वाले चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड नॉट द हार्मोनल। हार्मोनल हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यस प्रज्ञा। Sir, what is the definition of nervous coordination? Nervous coordination मतलब where the nervous system is involved and the transmission of the impulses will take place. So there is no specific definition for these terms. You just need to explain them. Okay. Okay, sir. So basically nervous coordination is faster because of electrical signals. So impulses are carried from one region to another. That is why this is going to be faster, whereas hormonal coordination is going to be slower, but of course most important, it's going to be a long lasting process. मतलब ज़्यादा देर के लिए रहेगा, but it's going to be slow because hormones will be released in the blood. From blood they will be transported to the target organ, and there the chemical reactions will take place. ठीक है, so we'll start with the first, that is nervous coordination, which is done with the help of a system, and that system is known as the nervous system. And nervous system के दो important parts होते हैं, one is the brain and the other one is known as the spinal cord. No, Alok, don't write anything. ठीक है, just listen to me carefully. क्या और कैसे लिखना है that we will study. मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है, ये वापस आएगा, फिर से आएगा, right? Now न्यूरल सिस्टम, नर्वस सिस्टम और नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इट्स कंप्लीटली एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब नर्वस सिस्टम ओरिजिनेट्स, जिसका ओरिजिन कहां से होता है, तो ये टिश्यू कौन सा है, तो दैट इज एक्टोडर्म। जैसे सम पार्ट विल डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म, सम विल डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म, सम विल डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म, वैसा नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम द एक्टोडर्म। ठीक है, सो इट शोज ग्रेट वैरायटी हियर। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाइड्रा वी हैव नर्व नेट सिस्टम in the form of a simple network of nerves. वहीं अगर आप अर्थोम और कॉकरोच की बात करते हो तो इट इज गैंग्लियोनेटेड नर्वस सिस्टम। डू यू रिमेंबर कॉकरोच का सिस्टम हमने पढ़ा था, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड,
है ना, या फिर along with the ganglia. So that's called as ganglionated nervous system. And when we talk about human beings, it is considered as most superior. ठीक है, highly developed system, the type of nervous system found in the human beings. ठीक है, so human nervous system. तो हम लोग बाकी का systems तो नहीं पढ़ेंगे. Obviously we are going to understand the human nervous system. Now human nervous system will have major three parts. कौन कौन सा? सबसे पहला आता है, that's called as the central nervous system, also known as the CNS. Then central nervous system के बाद आएगा peripheral nervous system, very good Aman, that is PNS, and the third one is autonomic nervous system or ANS. Central nervous system, where the organs are exactly along the central axis of the body. Peripheral nervous system, meaning slightly away from the central axis, so peripheral nerves बनते हैं. And autonomic nervous system is the one which gives nerve supply to all the internal organs. ठीक है, तो सारे इंटरनल ऑर्गन्स को जो नर्व सप्लाई आता है, दैट इज थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन से कुछ नर्व्स बाहर आएंगे, स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स बाहर आएंगे, एंड देन दे विल स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड. अलग अलग पार्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट होना चालू हो जाएंगे. तो दैट फॉर्म्स योर सिस्टम नोन एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आएगा? तो ब्रेन से निकले हुए नर्व्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स. और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलेंगे उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स. And then autonomic is further divided into two parts. One is known as the sympathetic nervous system and the other one is known as parasympathetic nervous system. ठीक है, तो basically ना, Sir, we have to write it. yes. Now I was about to tell you this, that you need to write this down. Nervous system ऐसा heading दो और उसके सिर्फ ये parts लिख के रखो कि कौन कौन से इसके parts आते हैं. तो if you see ना, actually कैसा होता है कि there is central nervous system and somatic nervous system. और somatic nervous system के दो parts आते हैं, उसमें peripheral आएगा और autonomic आएगा, ऐसा है. ठीक है, लेकिन आप ऐसे तीन लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. जस्ट राइट दिस डाउन. Which three we have to write? Which three? This Sir, entire this all we have to write. yes. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ये दो पार्ट्स है, पेरिफेरल के ये दो है और ऑटोनॉमिक के दो है. गिलास से पीना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, अमन. यस सानिका, करेक्ट. साइकोलॉजी में भी है ये चैप्टर, क्योंकि कनेक्शन है ना साइकोलॉजी के साथ इसका. हो गया? सर नर्वस सिस्टम के दो पार्ट कौन से आते हैं? सोमेटिक और दूसरा सेंट्रल. ओके सर. यस, करेक्ट दिया. वो सब पढ़ना है अपने को. ईयर आई भी पढ़ना है अपने को और ब्रेन पूरा पढ़ना है. स्पाइनल कॉर्ड भी पूरा डिटेल में पढ़ना है. ब्रेन में बहुत टाइम जाता है अपना. And I am going to show you some interesting videos also, which will make it more clear for you. Done? The boys and the girls, हो गया क्या? Yes, sir. Okay, चलो. ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको. द वन विच कीप्स द कंट्रोल ऑफ ऑल द इंटरनल ऑर्गन. सो इट्स अ सेमी ऑटोनॉमिक इन नेचर. ऑटोनॉमस मतलब सेल्फ गवर्निंग, खुद का काम खुद करने वाले, इसके लिए उसको सेमी ऑटोनॉमस भी बोलते हैं. Okay, now we will start with the first part here, that is the central nervous system. और central nervous system के दो parts आते हैं, one is the brain and the other one is spinal cord. And remember, brain and spinal cord will be covered from outside by covering called as meninges, which is just like any other organ. सारे organs हमारे body के अंदर covered होते हैं,
उनको कवरिंग आता है बाहर से, वैसे ये ऑर्गन्स को भी कवरिंग आता है, सो दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज द मेनिंजेस. नाउ मेनिंजेस आर प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, so we have these membranes here, so these membranes are called as the meninges, and meninges basically are of three types. So what are these? So basically they are the connective tissue membranes that surround the central nervous system. So as you can see here, ये नीचे वाला ब्रेन है, बराबर है, तो यहाँ पे ये एक थिन दिख रहा है ना आपको, ये एक टाइप का मेनिंजेस है, फिर उसके बाद ये वाला एक मेनिंजेस है, और उसके ऊपर और एक, जैसे ऐसे तीन लेयर्स है. सॉरी, ये मेरे ख्याल से ये बोन है ऊपर का, दिस वन इज द बोन, ये एक लेयर, ठीक है, ये दूसरा लेयर है उसके अंदर, और ये तीसरा लेयर है. तो इस तरीके से ऐसे तीन अलग अलग लेयर्स में आपको मेनिंजेस मिलते हैं. सो जैसे ये वाला बोन है, सो दैट बोन इज नोन एज द क्रेनियम, और क्रेनियम के नीचे यहाँ पे ये जो टिश्यू दिख रहा है आपको, दिस इज ब्रेन, और बीच में जो स्ट्रक्चर रहेगा दैट्स कॉल्ड एज द मेनिंजेस. तो मेनिंजेस के फिर तीन लेयर्स आते हैं. ठीक है, तो ब्रेन को ये प्रॉपर प्रोटेक्शन है मेनिंजेस का, लेकिन मेनिंजेस के बाहर भी क्या रहेगा, क्रेनियम विच इज अ बोन, स्कल का बोन है ये, राइट. तो विच आर दीज थ्री लेयर्स? तो सबसे पहला, नाउ दिस इज क्रेनियम, आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द ड्यूरा मैटर. सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरा मैटर. उसके बाद जो सेकंड लेयर आता है दैट्स कॉल्ड एज द एरिकनॉइड मैटर. एरिकनॉइड का मतलब आता है वेब लाइक, मतलब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा वेब जैसा दिखता है, इसके लिए उसको बोलते हैं एरिकनॉइड मैटर. और उसके अंदर एक थिन लेयर होता है दैट इज नोन एज द पाया मैटर. एंड इफ यू सी हियर, द पाया मैटर इज रनिंग अलोंग द ब्रेन, ऐसा ब्रेन के साथ रन हो रहा है, बराबर. Whereas the other, that is arachnoid matter, is not. मतलब ये ब्रेन को ये जो डिप्रेशंस और एलिवेशंस आते हैं ना, तो उसके साथ ये पाया मैटर रन करता है, लेकिन एरिकनॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर वैसा नहीं है. गेटिंग दिस? तीन लेयर समझा आपको, कौन कौन सा? सबसे पहला लेयर आता है ड्यूरा मैटर, सेकंड इज एरिकनॉइड, एंड थर्ड वन इज पाया मैटर. ठीक है. नाउ देयर इज अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरिकनॉइड मैटर. तो वो स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सो दिस स्पेस हियर इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज द सब ड्यूरल स्पेस. सब मतलब बिलो, ड्यूरल मतलब ड्यूरा. सो स्पेस प्रेजेंट बिलो द ड्यूरा मैटर between dura and arachnoid is known as subdural space. So naturally there will be a space present between arachnoid and pia matter. Yes, layers of meninges, Aditya. arachnoid और pia matter के बीच में भी स्पेस रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? Can anyone tell me? अगर ड्यूरा मैटर और arachnoid के बीच वाले स्पेस को सब ड्यूरल बोलते हैं, तो arachnoid और पाया के बीच वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? Very good, Sanika. So it is known as the subarachnoid space. सब का मतलब आता है below, arachnoid मतलब ये वाला arachnoid matter. So it's a space present below arachnoid matter. इसके लिए उसको बोलेंगे subarachnoid space. Correct आदित्य, correct Sanika. Good. ठीक है, तो ऐसे ये स्ट्रक्चर रहेगा. Subdural space will have the serous fluid. Normal fluid होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं serous fluid, which is rich in nutrients. Whereas the subarachnoid space will have an important fluid known as cerebrospinal fluid. ठीक है, तो that fluid is called as the CSF, cerebrospinal fluid और CSF. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बेसिक पहले लिख के रखो. डन? Done, sir. Okay. Finished?
चलो गुड। अभी हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ दिस, क्योंकि आगे बहुत सारी डिटेल्स आएंगे। सो वी विल स्टॉप हियर नाउ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी का पढ़ेंगे। अभी 4:30 बजे फिर से मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, Thank you, sir. Thank you, sir. सून। 4:30 बजे सब लोग आ जाओ वापस।